Very good morning to all my dear students of class 9th. Today we are going to start our very new topic of chapter number 11, work and energy. So in the previous video we have done and completed up to the formulation of kinetic energy, and today we are just going to revise it and then we will continue our new topic, power and energy transmission. So what was the formula of kinetic energy that we have discussed? It was kinetic energy is equivalent to half mv square. Now we are going to just derive this formula using our known previous formulas. So as you know that if we are having a body, we are having a body of mass m. Let us suppose this is the body of mass m, and this body was moving with some initial velocity u. Okay, the body is of mass m and was moving with initial velocity u, and let us suppose we have applied some force. That force is denoted by f. We have applied some force for some specific time t. ठीक है, हमने इसमें कुछ फोर्स अप्लाई किया कुछ टाइम पीरियड t के लिए. देन व्हाट विल हैपन? इट विल डिस्प्लेस्ड, it will get displaced and the displacement of the body of mass m will be s. ठीक है, ये इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करके ये कुछ यहाँ इस पोजीशन पे पहुँच गई है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम एस है. नाउ द मास विल बी सेम बट द वेलोसिटी विल चेंजेस, है ना. जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करती हैं फॉर सम टाइम पीरियड टी के लिए और उस बॉडी ने अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी विल चेंज इनटू इट्स फाइनल वेलोसिटी. उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है एंड दैट वेलोसिटी वी विल बी गिवन इट बाय v. आपने इसको v से डिनोट कर दिया. ठीक है, सो दिस वन इज द फिगर. एंड नाउ स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट अगर कोई बॉडी वर्क डन करती है तो वो वर्क डन कैसे करती है? वो वर्क डन तब करती है जब आपके फोर्स ने कोई डिस्प्लेसमेंट किया हो. मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स क्या कर दे, उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे, तो हम बोल देते हैं कि द सेम बॉडी हैज़ डन सम वर्क, कि उस बॉडी ने कुछ वर्क डन किया है. एंड दैट वर्क डन विल बी गिवन बाय W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. उस वर्क डन को हम कैसे दे देते हैं? एफ इंटू एस की हेल्प से. नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने आपको दिया था, इट विल बी एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना. ये हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, दैट एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. नाउ प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन द equation W is equal to F into S, what we will get? We will get W is equal to MA into S, isn't? And what we have done next? We have just paired the A and S. आपने क्या किया? W is equal to MAS था, तो M we have kept aside and AS will be paired. ठीक है, इनको paired कर दिया and we have just given it equation number 1. Now student, one more thing, that from the third law or third equation of motion, we have studied the equation of motion, and the third equation of motion was v square is equal to u square plus 2as, isn't? So from this third equation of motion we are going to find the value of as. अब अगर आप यहाँ से as की वैल्यू फाइंड करते हैं, किस तरह से आप फाइंड करेंगे? यू विल गेट दैट 2as is equal to v square minus u square. Okay, we have just found the value of 2as, and now as will be equivalent to half then v square minus u square. Now we have got the value of as, and we are going to place this similar value as in the equation number 1. Okay, so putting the value of as in equation number 1, we will get W is equal to m then half v square minus u square, isn't? So this W is the work done, and the work done is equivalent to half m v square minus u square. Now students, I have told you कि कोई अगर ऑब्जेक्ट वर्क डन करता है तो वो वर्क डन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी उसके अंदर पजेस करता है उसके इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, वर्क डन इज पजेस्ड बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जो वर्क डन कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू शो करता है. तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन क्या होने वाला है बेटा? इक्वल होने वाला है. अभी हम लोगों ने वर्क डन की वैल्यू फाइंड करी, दैट वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. एंड आई जस्ट हैव टोल्ड यू कि जो वर्क डन है वो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के इक्वलेंट है ना. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग W जो है उसको इक्वलेंट प्रूव कर देंगे, इक्वलेंट रख देंगे काइनेटिक एनर्जी के.
and we have found the value of W, that half m v square minus u square. So putting that value in equivalent to the W, we will get kinetic energy equal to half m v square minus u square. ठीक है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो यही है बेटा कि इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इफ द बॉडी possess सम इनिशियल एज वेल एज फाइनल वेलोसिटी. नाउ लेट अस सपोज कि जो बॉडी है वो स्टार्ट रेस्ट से हो रही थी. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, यू हो जाती है, और वो यू कितने के इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है ना. अगर कोई ऑब्जेक्ट यू रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसका यू क्या हो जाता है बेटा, 0. तो अब अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे यू की वैल्यू 0, व्हाट यू विल गेट सिंपली दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो इस तरह से आपको ये फॉर्मुलेट करके निकालना है फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना. नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है कुछ बातें जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट करके या बोल सकते हैं कि इसका कंक्लूजन करके निकाला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो तो है हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है. जैसे कि आपको दिख रहा है फॉर्मूले में कि काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल प्रोपोर्शनल है एम के. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल ही है स्क्वायर ऑफ वी के, यानी कि दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, यानी कि अगर एम आप इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज ही होती है, बिल्कुल इक्वल रेट में. और बट बात करें अगर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी अगर आप इंक्रीज करो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो होगी, बट क्या रेट होगा देखिए, क्योंकि आपको पता है कि वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी. तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हो तो वी इंक्रीज तो होने वाला है, बट वी कैसे, अगर सपोज कीजिए आपने मास को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, मास को हाफ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी. बट अगर आपने वेलोसिटी को डबल कर दिया बेटा तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, बिकॉज ये स्क्वायर में है. रिलेटिवली कैसे हैं ये दोनों आपस में रिलेशन में, कैसे हैं, स्क्वायर में रिलेशन है. तो अगर वी को आप डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 4 टाइम्स हो जाएगी. एंड अगर वी को हाफ कर देते हैं आप लोग तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 1/4 टाइम्स. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है इनमें. वन मोर थिंग कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. अच्छा, क्यों होती है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है. काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि मास एक ऑब्जेक्ट का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात करें अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, बट मास तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अच्छा, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, सपोज कर लीजिए वेलोसिटी है -5, ठीक है, और मास उस ऑब्जेक्ट का था 3 किलोग्राम का ले लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी वी आर गोइंग टू फाइंड दैट इट विल बी इक्वल टू हाफ 3 इंटू, अब देखिए इस -5 को क्या करना पड़ेगा हम लोग को, स्क्वायर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज हाफ एम वी स्क्वायर. एंड जब आप माइनस का स्क्वायर करेंगे इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो ओवरऑल जो हम लोग की काइनेटिक एनर्जी आएगी इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. चाहे आप मास ले लीजिए कि मास तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, और बट अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे इट विल अगेन इन टोटल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है. इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी कैसे क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी थी. ठीक. अगर बात करें हम लोग इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी को हम वेलोसिटी कभी कभार इसकी जगह हम लोग स्पीड भी बोल देते हैं. ठीक है. द टर्म स्पीड कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो ये कुछ बातें काइनेटिक एनर्जी के लिए थी. अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज का जो हम लोग का न्यू टॉपिक है बिल्कुल, वो है हम लोग का पावर. ठीक है. पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंज्यूमिंग एनर्जी, कि कितना वर्क, कितना रेट ऑफ वर्क हो रहा है वो आपको कौन डिफाइन करके देता है, पावर. जैसे कि बोल सकते हैं कि एक बल्ब की इतनी पावर है, ये इतने वॉट्स का है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा पावर होगा, जितना ज़्यादा वो वर्क डन करेगा, उसका रेट ऑफ वर्क डन जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी क्या होगी, पावर होगी. और या तो आप इसको पावर के टर्म्स में बताइए या फिर इसको कंज्यूमिंग एनर्जी यानी एनर्जी के टर्म में भी हम बोल सकते हैं. बिकॉज अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो थी वो किसके इक्वलेंट थी, वर्क डन के इक्वलेंट है, यानी कि एनर्जी कहीं ना कहीं वर्क डन के इक्वलेंट है. तो या तो वर्क डन के टर्म्स में बोलिए कि इट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज़ रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी. ठीक है. तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इस तरह से भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं. ठीक, कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, इससे आपको पावर की उसका पता चल जाएगा.
अच्छा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, बिकॉज रेट ऑफ डूइंग वर्क तो W अपॉन T ही होता है। तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला आपका P का बन गया, या फिर दूसरा क्या बन गया बेटा, P इज इक्वल टू E अपॉन T, एक ये फॉर्मूला हम लोग का बन गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि पावर जो है कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक, और 1 वॉट जो होता है वो 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। देखिए कैसे, आपको पता है P इज इक्वल टू W अपॉन T, है ना, और W जो था वो वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, सो इट विल बी जूल पर सेकेंड। ठीक है, एंड 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग 1 वॉट बोल देते हैं। ठीक है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये भी हम लोग का एक कंसेप्ट है। अब देखिए, अगर 1 वॉट आपको डिफाइन करने के लिए आता है तो आप क्या बोलेंगे, एक ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर अगर 1 वॉट की हम बोल रहे हैं, तो उससे हमारा ये मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क कर रहा है। ठीक है, 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, या 1 वॉट इज द पावर दैट 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। या तो आप पावर को वर्क के टर्म में बताइए या फिर एनर्जी के टर्म में बता दीजिए। ठीक है ना। अच्छा, 1 किलो वॉट में कितने वॉट्स होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, एंड 1 मेगावाट में जो होते हैं 10 टू द पावर 6 वॉट होते हैं। इसके अलावा जो कुछ यूनिट्स है हम लोग की पावर की, वो होती है बेटा हॉर्स पावर। ठीक है, HP। तो HP जो है ये भी हम लोग की यूनिट है, और काफ़ी सारी जो हम लोग के इंजन्स वगैरह होते हैं, मोटर्स वगैरह जो होती हैं, वो हॉर्स पावर में आती हैं। सो कुछ अनदर यूनिट्स जो है वो हॉर्स पावर है, और 1 हॉर्स पावर में बेटा 746 वॉट होते हैं। ठीक है, 746 वॉट होते हैं। द पावर ऑफ एन इंजन of cars and other vehicles is measured by the unit called brake horse power से आप इसे मेजर कर सकते हैं, जो कि 1 हॉर्स पावर के इक्वल ही होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आपने एनर्जी पढ़ लिया, अब उसकी कमर्शियल यूनिट हमने पढ़ना है। कमर्शियल का मतलब होता है ट्रेड यूनिट, जो आप डे टू डे लाइफ में जिसका यूज़ करते हो वो यूनिट क्या है। नॉर्मली हमने एनर्जी की यूनिट पढ़ी है कि वो यूनिट होती है जूल, बट कमर्शियल यूनिट की बात करें तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है बेटा किलो वाट आर, KWH। ठीक है, और 1 किलो वाट आर जो होगी वो अमाउंट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जब आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर कितनी होगी, 1 वॉट की पावर, 1 किलो वाट की पावर होगी, एंड इट इज़ यूज फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक चलेगा। उसकी पावर 1 किलो वाट की होनी चाहिए, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो 1 किलो वाट आर की होगी। ठीक है, 1 kilowatt hour is the amount of energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर जो है वो कितना यूज़ कर रहा है, पावर 1 किलोवाट की पावर लगा दे रहा है अपनी कितने घंटे में, 1 आवर में, तो आपकी पावर रेटिंग कितनी हो जाएगी, आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, 1 किलोवाट आवर की। ठीक है, एंड 1 किलोवाट आवर को अगर आपको जूल, जो कि ऐसा यूनिट है हम लोग की एनर्जी की, उसका अगर दिखाना है कितना रिलेशन होता है, तो 1 किलोवाट आवर में बेटा 3.6 10 टू द पावर 6 जूल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 किलोवाट में 1000 वॉट है, और 1 आवर में 3600 सेकेंड है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा हम लोग को, 3.6 10 टू द पावर 6। ठीक है, इतने हम लोग के जूल्स आ जाएंगे 1 किलोवाट आवर में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि आपको पता है कि एनर्जी जो है वो क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, अपनी फॉर्म्स को चेंज करती है। सो द चेंज ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिकली एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग इसमें, जैसे कि आपके कुछ डिवाइसेस देखिए। ठीक है, डिवाइसेस मैं बता रही हूँ आपको, इलेक्ट्रिक आयरन। अगर मैं इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रही हूँ बेटा, तो इलेक्ट्रिकल आयरन जो होती है कौन सी एनर्जी लेती है सबसे पहले, इट विल टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इट विल टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फर्स्ट फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, और क्या प्रोड्यूस करती है आपके लिए वो हीट प्रोड्यूस करती है, सो दैट आप इजीली क्या कर सके, आयरन कर सके हीट के थ्रू। ठीक, तो इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है, बट उसको कन्वर्ट किस में कर दे रही है, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग की कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अप्लायंस ने क्या कर दिया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया।
सिमिलरली फिलामेंट बल्ब या बल्ब भी आप कह सकते हैं, उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पहले वो फिलामेंट को गर्म करती है, ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी फर्स्ट, एंड देन दैट हीट एनर्जी जब उस टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है फिलामेंट का कि वो क्या करने लगता है, वो लाइट अप हो जाता है। द मटीरियल यूज इन द फिलामेंट वॉज टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का यूज़ करते हैं, टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं। और ये टंगस्टन की ऐसा आपका मटीरियल है, ऐसा आपका मेटल है कि क्या करता है वो, कि वो हीटअप होने पे विद इन सम टेम्परेचर पे अगर वो पहुंच जाता है तो वो हीटअप करने पे लाइट अप हो जाता है। अगर वो जैसे गर्म होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है अपने में से, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक जो हम लोग के जो बल्ब होते हैं हम लोग के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देन दे यूज टू कन्वर्ट इट इनटू द लाइट एनर्जी, ठीक। सपोज कीजिए एक बॉडी को अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं कुछ सम हाइट से, कहाँ पे, अर्थ में अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, तो जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो स्टार्टिंग में जो उसकी एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, बिकॉज इट वॉज इन रेस्ट, द बॉडी पजेस पोटेंशियल एनर्जी, एंड जब आप इसको छोड़ देंगे तो उसके बाद वो क्या एक्वायर करने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, एंड देन वो काइनेटिक एनर्जी आपकी कंटिन्यूस रहेगी जब तक वो क्या ना कर जाता, जब तक वो स्ट्रक नहीं कर जाता, टिल इट स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी देखिए इस तरह से हम लोग की एनर्जी की फॉर्म्स कन्वर्ट हो रही है। या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, इन दैट केस आपने क्या किया, सबसे पहले उसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, जब आप एक हाइट तक वो पहुँच जाएगा जितनी उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जहाँ तक वो जा सकता है, वहाँ तक पहुँचने के बाद इट विल पजेस द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जब वो रुक जाएगा वहाँ पे जा करके इट विल पजेस पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन अगैन क्योंकि उसको अर्थ अट्रैक्ट कर दिया अपनी तरफ तो अगैन इट विल पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का, जब आपकी बॉडी क्या करे, अपनी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एंड जब ये टॉपिक आता है तो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, तो उनके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है किस तरह से आपका एनर्जी कन्वर्जन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, जैसे मास का कंजर्वेशन लॉ था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर, है ना, सॉरी, मास का सिर्फ ये था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कंजर्वेशन का क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड whenever energy changes from one form into another the total amount of energy remain constant या फिर conserve, कि बॉडी जो है अपनी एनर्जी ना ही तो क्रिएट करती है ना ही वो डिस्ट्रॉय करती है, बस वो एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और इन सब में जो ओवरऑल रहती है, टोटल जो एनर्जी रहती है ऑब्जेक्ट की, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। When a body is thrown upward or dropped from some height, the total mechanical energy जो होती है वो किसके इक्वल होती है, उनके सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के इक्वलेंट होती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं या ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, तो दोनों ही केस में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, देखिए आपने सीखा कि ऊपर से अगर आपने नीचे ड्रॉप किया है ऑब्जेक्ट को तो सबसे पहले उस पर कौन सी पोटेंशियल है, उसके बाद काइनेटिक आएगी, फिर जैसे वो स्ट्राइक करने से पहले भी तक भी उसके पास काइनेटिक रहेगी, एंड जैसे स्ट्राइक कर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी चली जाएगी। इन सब में जो टोटल एनर्जी रहती है वो कितनी रहती है ऑब्जेक्ट की, बिल्कुल सेम, जितनी पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक के इक्वलेंट तो नहीं होता, बट हाँ क्या चलता है, रेशियो बिल्कुल इक्वल चलता है इनका, ठीक है। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन द एनर्जी इज फुल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट अपनी हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक, अगर आप नीचे से ऊपर को थ्रो कर रहे हो तो उस केस में उसकी फुल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो, एंड एट द लोएस्ट पॉइंट की अगर बात करें ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस करता है। एट ऑल अदर पॉइंट्स द एनर्जी इज पार्शियली पोटेंशियल एंड पार्शियली काइनेटिक रहती है। जस्ट इट इज़ अ केस ऑफ थ्रोइंग अ बॉल एट अपवर्ड एट सम हाइट, कुछ हाइट तक उसको थ्रो कर देना, इसका ये केस बता रहे हैं आपको, ठीक है।
इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें पेंडुलम की, तो पेंडुलम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम रहती है एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशंस कहाँ तक है, जहाँ पे ये जहाँ तक रीच कर रहा है उसको उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कह रहे हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन में तो सबसे ज़्यादा जो रहती है मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ जाके वो रुकता है, तो मैक्सिमम इट विल हैव द पोटेंशियल एनर्जी एंड मिनिमम यानी कि ज़ीरो जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, उसकी मीन पोजीशन यानी कि सेंटर पोजीशन पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहती है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम पे पहुँच जाती है उसकी मीन पोजीशन यानी कि सेंटर पोजीशन पे। ठीक है ना, तो ये हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था बेटा। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे एंड द चैप्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड इट टुडे इन दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।